नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वंडर दैट वाज इंडिया बाय ए.एल. बसमेन। यह इंग्लिश फाउंडेशन का चैप्टर 4 है। आप इसे यूनिट 4 भी कह सकते हो। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में मेनली 3 भाग होंगे: समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज। पहले भाग में हम समरी डिस्कस करेंगे, दूसरे भाग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और तीसरे भाग में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस सिंगल वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। Hindu civilization is never going to die. It will be retention of continuity. The Bhagavad Gita will not cease to inspire men of action and the Upanishad men of thought. The most important characteristics of the Indian way of life is that it will retain its charms and graciousness in spite of being affected by the West. हिंदू सभ्यता कभी नष्ट नहीं होगी, उसमें निरंतरता बनी रहेगी। भगवत गीता कर्मशील व्यक्ति को एवं उपनिषद विचारशील व्यक्ति को प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय जीवन शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पश्चिम से प्रभावित होने पर भी वह अपनी शोभा तथा आकर्षण को कायम रखे हुए है। The whole of Southeast Asia received most of its culture from India. Other influences from China and Islamic world were felt in Southeast Asia, but primary impetus to civilization came from India. Indian historians, proud of their country's past, often refer to this region as Great India and speak of Indian colonies. In its usual modern sense, the term colony is hardly accurate. However, Vijaya, the legendary Aryan conqueror of Ceylon, is said to have gained the islands by the sword. But beyond this, we have no real evidence of any permanent Indian conquest outside the bounds of India. The India colonies were peaceful ones, and the Indianized king of region were indigenous chieftain who had learnt what India had to teach them. संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया ने सभ्यता का अधिकांश भाग भारत से ग्रहण किया है। चीन तथा इस्लामिक प्रभाव भी दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलता है, परंतु सभ्यता की मौलिक प्रेरणा इन देशों ने भारत से ग्रहण की है। भारतीय इतिहासकार अपने देश के अतीत पर गर्व करते हुए उसे विशाल भारत, ग्रेटर इंडिया की संज्ञा देते हैं। पौराणिक कथाओं में आर्य राजा विजय द्वारा लंका जीतने का उल्लेख है, परंतु अन्य कोई प्रमाण नहीं है। भारतीय उपनिवेश तलवार का नहीं वरन शांति का उपनिवेश था। वहां के स्थानीय भारतीय राजाओं ने वही सीखना चाहा जो कि भारत उन्हें सिखा सकता था। इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, बट इट वाज सम 2000 ईयर एगो दैट इंडिया एंड चाइना रियली मेट। द डिस्टिंक्टिव civilization of China, Japan, Korea and Tibet come through the Buddhist influence. भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव मध्य एशिया से होता हुआ उत्तर की ओर फैला, पर भारत और चीन के बीच वास्तविक संपर्क 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। चीन, जापान, कोरिया तथा तिब्बत की विशिष्ट सभ्यताएं बौद्ध प्रभाव की देन थी। India also gave many practical gifts to Asia. Among these must be included rice, cotton, sugarcane, spices and domestic birds and the game of chess and the decimal system. भारत ने एशिया को कुछ विशिष्ट उपहार भी दिए हैं। इनमें से प्रमुख हैं चावल, कपास, गन्ना, मसाले, घरेलू पक्षी, शतरंज का खेल और दशमलव प्रणाली। The influence of Indian thought on Western thought has been immense. During the last 150 years, the establishment of the Theosophical Society and the influence of Swami Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda are pointers of this influence. But the greatest Indian influence on the West has been that of Indian religious literature through philosophy, Goethe, and many Western scholars read Hindu scriptures in translation very avidly. Fitch Hazel also imbibed
Hindu thought through translation of the scriptures. The Indian influence was strongly felt in England and America. Some of the writers who were influenced were Merson, Thoreau, Walt Whitman, Carlyle, Richard Jeffries and एडवर्ड कारपेंटर। पिछले 150 वर्षों में भारतीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य देशों में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव उल्लेखनीय है, किंतु पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न देशों में पर भारतीय प्रभाव मुख्यतः भारतीय धर्म ग्रंथों का दर्शन के रूप में प्रभाव था। गेटे और अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों ने भारतीय धर्म ग्रंथों को अनुवाद के जरिए पढ़ा। फिश्ते और हीगल पर भी भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रभाव पड़ा। भारतीय प्रभाव इंग्लैंड और अमेरिका पर भी पड़ा। इमर्सन, कार्लाइन, वॉल्ट विटमैन, रिचर्ड जेफरीज और एडवर्ड कारपेंटर वे लेखक थे जो भारतीय विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। India's contribution to the world's cultural stock has already been very large, and it will continue and grow as in her new freedom, her prestige and influence increases. For this reason, if for no other, we must take account of her ancient heritage in its success and its failures. For it is no longer the heritage of India alone, but of all mankind. विश्व संस्कृति में भारत का योगदान बहुत अधिक रहा है। उसका सम्मान एवं प्रभाव बढ़ेगा। हमें प्राचीन विरासत को इसी परिप्रेक्ष्य में उसकी सफलताओं और असफलताओं के साथ समझना चाहिए, क्योंकि यह विरासत केवल अकेले भारत की ही नहीं है, वरन संपूर्ण मानव जाति की है। इस प्रकार से हमने इसकी समरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यह फैक्ट्स एल भस्म पर आधारित होंगे। फुल नेम आर्थर लियोवेल भस्म, ये इनका पूरा नाम है। बॉर्न 24 मई 1914 इंग्लैंड, 24 मई 1914 इन इंग्लैंड इनका जन्म हुआ था। डाइड 27 जनवरी 1986। इनकी सबसे ख्याति प्राप्त पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया, फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहले इनकी जो पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया वो प्रकाशित हुई थी इन द ईयर 1954, 1954 में। बुक फोकस, बुक किस चीज़ पर फोकस करती है तो कवर्स प्री इस्लामिक इंडियन सिविलाइजेशन। प्री इस्लामिक यानी कि इस्लाम के आगमन से पहले जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, भारतीय संस्कृति थी, उस पर यह बुक फोकस करती है। यह एक अंग्रेज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें प्री इस्लामिक है इसका मतलब है कि इसमें इस्लाम धर्म की चर्चा नहीं होगी भारत के सेंस में, कि भारत में इस्लाम के आने से पहले वाले भारत की ही चर्चा होगी। 7 मेन थीम रिलीजियन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साइंस, आर्ट एंड डेली लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। ऐतिहासिक भारत में जो धर्म था, सोसाइटी समाज, पॉलिटिक्स राजनीति, फिलॉसफी दर्शन, साइंस विज्ञान, आर्ट कला और डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन, जो ऐतिहासिक भारत में दैनिक जीवन था, इसकी इसमें चर्चा की गई है। मेंटर ऑफ, ये किसके मेंटर थे, किसके एक तरह से मार्गदर्शक थे तो रिनाउंड इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर, एक जाने माने भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर के ये मेंटर हुआ करते थे। एल भस्म। 10 पर्सपेक्टिव प्रेजेंटेड इंडिया एज अ कल्चरली एंड स्पिरिचुअली रिच सिविलाइजेशन। इन्होंने किस नज़रिए से प्रस्तुत किया है तो इन्होंने भारत को कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से और स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से रिच, काफ़ी उन्नत, उत्कृष्ट या अमीर बताया है। इनका मानना है कि भारत में जो संस्कृति है, भारत में जो आध्यात्म है, योग है, ये दूसरे देशों की तुलना में बहुत उत्तम है और इससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। भारत के पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के भले के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया
में इसकी चर्चा की है, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, भारत की मुख्य समस्या क्या है? आंसर सी नंबर, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर डिजीज एंड पॉवर्टी, बीमारियां और गरीबी। ध्यान देंगे, ये उस समय की चर्चा हो रही है। दूसरा, द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया, आंसर होगा सी नंबर, द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग फास्ट, जो पुराना भारत का चेहरा है या मुखौटा है वो चेंजिंग फास्ट, जल्दी ही बदलता जा रहा है। थर्ड, द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडिया कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, भारत का जो सबसे पहला प्रभाव था जो साउथ ईस्ट एशिया पर पड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया पर पड़ा, उसे कैसे देखा जा सकता है? आंसर होगा बी नंबर, द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 5th सेंचुरी BC, उसे 5th सेंचुरी BC से देखा जा सकता है, अर्थात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत का जो इन्फ्लुएंस था वह साउथ ईस्ट एशिया में यानी दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में देखा जा सकता है। चौथा, विजया हु इज सेड टू हैव conquered Ceylon first was, आंसर, विजया हु इज said to have conquered Ceylon first was a king from real life, विजय जो सिलोन यानी कि श्रीलंका को जीत गए थे वे कौन थे? तो विजय जिन्होंने श्रीलंका पे जीत पाई थी वो एक राजा थे जिनका संबंध वास्तविकता से है, जो वास्तविकता में एक राजा हुए थे जिन्होंने श्रीलंका को जीता था। और ये सत्य बात भी है, चोल राजाओं में कई सारे ऐसे राजा हुए जैसे राजेंद्र चोल जिन्होंने श्रीलंका को कई बार जीता है। तो यहाँ पे राजा विजय की चर्चा हो रही है जिन्होंने सिलोन को जीता था। ध्यान दीजिए, श्रीलंका का नाम सिलोन यहाँ पे है। 5वां नंबर, इन द बिगनिंग कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर, शुरुआत में चाइना यानी चीन और इंडिया यानी भारत के रिलेशंस कैसे थे? सांस्कृतिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशंस। इन द बिगनिंग कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, शुरुआत में यह बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। 6, द वेस्टर्न डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन मिस्टिज्म वाज, आंसर होगा डी नंबर, द वेस्टर्न dissemination of Indian mysticism was not very influential. 7, who is the author of the wonder that was India, इस बुक के या इस टाइटल के द वंडर दैट वाज इंडिया इसके लेखक कौन है? तो बी नंबर, A.L. बज्म। 8, when was the wonder that India first published, यह किताब कब पब्लिश की गई थी, द वंडर दैट वाज इंडिया? तो आंसर है 1954, 1954 में। विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डज द बुक प्राइमरली कवर, यह मुख्य रूप से, मौलिक रूप से किस समय काल के भारत की चर्चा करती है? तो आंसर है सी नंबर, प्री इस्लामिक इंडिया, इस्लाम के आगमन से पहले वाला भारत। 10, अ की एम ऑफ भस्म्स बुक वाज टू, आंसर, हाईलाइट द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिचनेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, भस्म की बुक का मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत की कल्चरल रिचनेस, एंशिएंट इंडिया की यानी ऐतिहासिक भारत की जो कल्चरल रिचनेस है, सांस्कृतिक गौरव हाईलाइट करना, उसको सामने लाना। वो दिखाना चाहते थे कि जो प्राचीन भारत था वो बहुत महान था संस्कृति के मामले में। 11, विच इंडियन रिलीजन इज नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल इन द बुक, ऐसा कौन सा भारतीय मूल का धर्म है, भारतीय धर्म है या भारत में पाए जाने वाला धर्म है जो इस किताब में नहीं दिखाया गया है? तो आंसर है इस्लाम, इस्लाम की चर्चा नहीं हुई है, ये भारत में ये धर्म है, काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन इसकी चर्चा इस बुक में नहीं हुई। कारण क्या है? कारण ये बुक फोकस करती है पुराने भारत पे, ऐतिहासिक भारत पे, जब भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था। 12, अकॉर्डिंग टू भस्म द कास्ट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया वाज, भस्म के अनुसार जो जाति व्यवस्था थी एंशिएंट इंडिया यानी कि ऐतिहासिक भारत में वह कैसी थी? तो ए,
कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम, एक जटिल व्यवस्था थी जो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, विकसित हुई समय के साथ साथ। तो सी नंबर, ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इवॉल्व्ड ओवर टाइम। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द बुक नॉट फोकस ऑन, इनमें से कौन से क्षेत्र पर बुक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या फोकस नहीं किया है? तो सी नंबर, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स, आधुनिक भारत की राजनीति पर फोकस नहीं किया है। कारण क्या है? कारण वही है कि ये जो किताब है ये पुराने समय पे बेस है, यानी एंशंट इंडिया पर बेस्ड है, ना कि मॉडर्न इंडिया पे। तो ये मॉडर्न शब्द होने की वजह से ये आंसर हो जाएगा हमारा कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं है। अगर सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स होती तो शायद बात कुछ और होती, पर इसमें मॉडर्न शब्द है क्योंकि ए एल बस्म ने एंशंट इंडिया की चर्चा करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, ए एल बस्म viewed ancient Indian civilization as, लेखक प्राचीन भारत की सभ्यता को कैसे देखते हैं? डीपली फिलोसफिकल एंड कल्चरली एडवांस, ये इसे बहुत गहराई में दर्शन के रूप में देखते हैं कि जिसका, ऐसी सभ्यता जिसका दर्शन बहुत गहरा है, और कल्चरली एडवांस, संस्कृति उसकी बहुत एडवांस है, बहुत विकसित है। 15, which empire is discussed in the wonder that was India for its political and administrative achievements? आंसर बी, गुप्ता एम्पायर। कौन से साम्राज्य की चर्चा की गई है इस किताब में जिसके राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है? तो गुप्ता एम्पायर या गुप्ता साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, जिसके जैसे राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्टूडेंट ऑफ ए एल भस्म, इनमें से कौन ए एल भस्म की छात्र थे? तो बी नंबर, रोमिला थापर। ये भारत में आगे चलकर एक महान इतिहासकार या एक फेमस इतिहासकार बने। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं किसी भी ईयर के लिए तो आप चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंग्लिश फाउंडेशन, हिंदी फाउंडेशन, ये सारी वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।